Hello, my dear students. Welcome back to your English online class. Today, we are going to start a new chapter, chapter 4, and the name of the chapter is The Lonely Dragon. It is a poem written by Teresa Hing. So, this poem is about a dragon who is lonely and very sad because no one is there with him. He wants to make friends. Everybody keeps away from him, thinking that he is a fierce dragon who blows out fire. Everybody thinks that he is harmful and dangerous. But the truth is that the dragon likes and needs friends. He would in fact be really glad to have a friend. Now, let's the very first stanza. Let's see the very first stanza. So, start the reading of the stanza. A dragon is sad because everyone thinks a dragon is fierce and brave and roars out flames and eats everybody, whoever comes near his cave. So, in this stanza, the poet talks about the dragon feels sad and lonely because everybody thinks that he is violent and harmful. He feels left out because nobody talks to him or wants to be friend with him because everybody really scared of him. People assume that he is going to burn everybody with flames of fire or eaten them up if they go near to him or near his cave. उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था. सभी सोचते थे कि वो अपने मुंह से आग उगलेगा और सब जल जाएंगे, है ना. इसीलिए उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, उसके पास कोई नहीं जाता था और उससे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करता था. बट ड्रैगन चाहता था कि सच में उसका कोई फ्रेंड हो और इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. But a dragon likes people. A dragon needs friends. A dragon is lonely and sad. If anyone knows of a friend for a dragon would be very glad. So, in this stanza, the poet talks about the fact that the dragon also likes people. He wants to be friends with them. The poet asks the reader to look out for anyone who would not mind of being friend with this dragon because this lonely sad dragon who wants to have a friend would be very happy if someone would want to be friend with him. The dragon is sad and lonely because everybody is scared of him, but then he also like people. He also want people to be friend with him. रियलिटी क्या है कि वो पीपल को पसंद करता है और लोगों को वो पसंद करता है, लेकिन उसके लिए दिमाग में लोगों ने एक सेटअप बना के रखा हुआ है कि वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता. उसकी हेवी बॉडी है, उसके मुंह से वो आग निकालेगा, वो पीपल को जला के रख देगा. हाँ, है ना, हम इंसानों को जला देगा. वो डरावना है, बहुत फियर्स, वेरी वायलेंट, बहुत 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 ज़्यादा मतलब गुस्सैल है. वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा. इस वजह से कोई भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करता. लेकिन रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ड्रैगन भी चाहता है कि लोग उससे फ्रेंडशिप करें, उससे देख के भागे नहीं. सो चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस पोएम वी लर्नड दैट
We should not judge people on the basis of how they look or what we have heard about them. हम वो कैसे दिख रहे हैं, कोई कैसा दिख रहा है या हमने उसके लिए क्या सुन रखा है, इसके बेसिस पर हमें किसी के लिए अपनी सोच तैयार नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के लिए ये जजमेंट नहीं देना चाहिए कि वो ऐसा होगा जब तक उसे हम खुद परख ना लें, जब तक हम उसके साथ अपने तरीके से जी ना लें। हम उसके लिए कि वो गलत है, वो ऐसा है, हम उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करें, उससे हम दूर ना भागें। Here in this poem, the poet talks about the lonely dragon. No one wants to be friend of him because everyone assumes that dragons are dangerous and unfriendly. But the poet says that the dragon too have feelings and they also want to become friend to other people. यहाँ पर एक ऐसे ड्रैगन को पोएट ने बताया है जो वो उसके पास भी फीलिंग है, वो भी फ्रेंडशिप चाहता है, वो भी लोगों के बीच में रहना चाहता है, लेकिन चूंकि माइंड सेटअप सबके लिए, सबके दिमाग में ऐसा है, सबने ऐसा बना रखा है दिमाग में सेटअप सबका कि सबके दिमाग में ये बातें घर करी हुई हैं कि ड्रैगन हमेशा हार्मफुल होता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, किसी को इस बेस पर कि वो कैसा दिख रहा है या उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं या हमने क्या सुन रखा है, इस पर ध्यान ना देकर किसी की नीड के बेस पर आप उसके साथ रहिए। ठीक है, जैसा आप अपने लिए व्यवहार नहीं चाहते हैं वैसा उसके साथ व्यवहार भी ना करें। आप चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड हों, आप हंसो खेलो, सब आपके साथ घुल मिल के रहें, तो वैसे ही आपको भी सबके साथ रहना चाहिए। जो चीज़ें आपको अपने लिए बुरी लगती हैं वो आप दूसरों के साथ भी करो। जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ करो। जो आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं होंगी, ऐसा सोच के उसके साथ आप बिहेव करो। ओके, ट्रीट अदर्स द वे यू लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव करो, उन दूसरों को वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ व्यवहार हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, goodbye.